यहाँ उपस्थित सभी को एंड सावजी भाई को मेरा बहुत बहुत आभार कि आप आज यहाँ हम सबके बीच में हैं। कनक काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं कि हर साल बोलते हैं कि सुषमा नेक्स्ट ईयर सावजी भाई को ज़रूर लाएंगे। ऐसा करते करते कई साल निकल गए और आज सावजी भाई हमारे साथ हैं। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज? सावजी भाई को हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इनकी फॉर्मल इंट्रोडक्शन बनती है। हम पूरी कॉन्वर्जेशन जो उनके साथ करेंगे वो हम हिंदी में ही करेंगे एंड हमारे यहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप उससे ट्रांसलेशन करा लीजिए। लास्ट में 10 minutes वी विल हैव अ क्वेश्चंस फ्रॉम यू। उसमें आप प्लीज़ अपनी लर्निंग्स मत डालिए, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ये समझना कि लर्निंग्स कहाँ हैं और क्वेश्चंस कहाँ हैं। उसमें आप सिर्फ आप जो क्वेश्चन, आपके जो सवाल हैं, जो आप चाहते हैं कि सावजी भाई उनका जवाब दें, वो आप प्लीज सिर्फ क्वेश्चन ही डालें। आई एम ऑनर्ड टू इंट्रोड्यूस अ मैन whose life and work have redefined the diamond industry and positively impacted countless lives through massive social work. Savji Bhai Dholakia, the founder and chairman of Hare Krishna Exports Private Limited, exemplifies leadership, generosity, and legacy. Starting from the humble village of Dudhala in Gujarat, Savji Bhai's journey is one of determination, vision, and hard work. At just the age of 12, he moved to Surat, laying the foundation for what would become Hare Krishna Exports in 1992, alongside his three brothers. From a modest diamond polishing unit, the company has grown into a billion-dollar enterprise, renowned globally for excellence in diamond manufacturing and jewelry. Savji Bhai's leadership, Hare Krishna Exports has established a strong presence in key markets including Surat, Mumbai, Dubai, New York, Hong Kong, and Antwerp, and I'm sure the list goes on. With an annual turnover of $1.5 billion, the company's success is remarkable. Equally renowned is his generosity over the years. He has gifted thousands of cars, homes, and jewelry to loyal employees as expressions of appreciation. Beyond business, his commitment to social welfare runs deep. Through the Dholakia Foundation, he has spearheaded impactful projects in environmental conservation, education, healthcare, and women's empowerment. The foundation has planted millions of trees so far and constructed 164 plus water bodies, provided scholarships to underprivileged students, and organized mass weddings for employees, initiatives that has brought lasting changes to communities. He was also honored with Padma Shri in the year 2022 for his contribution to society and the diamond industry. He was also awarded an honorary doctorate for his remarkable contributions and serves as a lead convener of the annual Padma Awardee Gathering. Recently, on October 28th, which is not this year of course, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, inaugurated the Bharat Mata Sarovar, a landmark project led by Savji Bhai that underscores his dedication to environmental stewardship. Prime Minister Modi ji also attended the wedding of Dravya and Chandi Dholakia, a memorable occasion for the family. He goes beyond being an entrepreneur. He is a philanthropist, a speaker, and a role model who embodies humility, compassion, and a commitment to positive change. His journey shows how vision and perseverance can inspire others to make a difference. Friends, Savji Bhai is all that each one of us has aspired to be and want to be. Let's again give a huge round of applause to Savji Bhai. And may I request that before he comes on stage, can we play the video, please?
को नमन से प्रणाम करूँ। एक करोड़ नदी 155 करोड़ निराकरण पर भारत माता भागीदारी भारतीय परिवार मोटा स्केल पर तुम्हारा गुजरात में भागीदार लोगों ने एक बार पानी मरी है तो गुजरात भागीदार दिया हमारा तो प्राप्त है बंद करो पानी पानी शेयर करो खूब है माटी उपाड़ो અને ગુજરાત પાણી પહોંચાડો. Let's welcome on stage Sarjibhai Dholaki. हम सबको अक्सर ये कहा जाता है कि सपने देखो और सपने देखो, ये पूरा हो गया एक और सपना देखो। बट हमने से कितने लोगों ने ये सुना है कि किसी ने अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दी। हाउ मेनी ऑफ अस इन द ऑडियंस कि ये सपना मेरी माँ का सपना है और मैं उस सपने को पूरा करना चाहता हूँ। नाना दादा सार्जीभाई 12 साल की उम्र में इनकी माँ ने इनको घर से जाने को बोल दिया। एक माँ के लिए आसान नहीं होता है ये करना, और सार्जीभाई को 3 चीज़ें करने को बोली। अ ग्रेट कॉम्बिनेशन कि तुमको बड़ा बनना है, अच्छा बनना है और नाम होना है। हम सार्जीभाई से सुनेंगे कि 12 साल की उम्र में जब ये घर छोड़ के निकले कैसा लगा उनको, और ये माँ के स्वप्न को पूरा करने में किस तरह से पूरा सिलसिला चला। आपने क्या क्या दिक्कतें महसूस करी, घर से दूर रहना, माँ से दूर रहना, बट हर समय दिमाग में ये रखना कि माँ के स्वप्न को पूरा करना है। थैंक यू। मैं खड़ा होकर बताता हूँ, सबको मजा आ रहा, मेरे को भी मजा आ रहा। आप बैठिए, मजा नहीं। आज के इतने बड़े बिजनेस बैठे हुए हैं, सभी बिजनेसमैन हैं, कुछ ने कुछ जीवन में सभी ने कुछ पाया है। सिंपल ऑडियंस नहीं है, क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी ज्यादा है। आपका उत्साह, आपका स्वागत, बिना बोले आप खड़ा होकर स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं तो मेरा तो पसीना सूखने वाला। लेकिन मेरे को भी मजा आएगा, आनंद आएगा क्योंकि ऑडियंस ऐसा है और सवाल भी देखने बहुत बढ़िया पूछा। जो मैं स्कूल में, कॉलेज में, फैमिली में जहाँ मैं जाता हूँ तो ये एक शेयरिंग करता हूँ। एक अभण माँ, सबकी माँ सबके घर पे होती है और इसमें कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। एक अभण माँ ने 12 साल 13 साल की उम्र में मैं फिर भी बार बार घर पे चला जाता था। मैं सूरत आने का नहीं मेरे को पसंद था। मेरे फादर और मदर की इच्छा थी गाँव में रहने को नहीं है, या तो पढ़ो या तो धंधा करने जाओ, लेकिन घर छोड़ो, इधर गाँव में रहने का नहीं है। तो धक्का लगा के उनको भेजा था। 3 साल तक मैं रड़ता गया और वापस गाँव चला जाओ तो फिर माँ समझावे कि बेटा तू आता है, तू थोड़ा बड़ा आदमी बन, तू अच्छा आदमी बन, तू पैसा वाला बन। तो मेरा चाचा था बिजनेस में, तभी भी उसका नाम हो गया था। मेरे चाचा का नाम है, तेरा क्यों नाम नहीं हो गए? बेटा ऐसा कुछ कर। सबकी माँ यही बोलती। एक अभण माँ ने 3 मंत्र दिया था, बड़ा बनना, अच्छा बनना और नामाधीन बनना। मैं ये इसकी गहराई में जाता हूँ। ये तो 3 सिंपल बात हो गई, अपने को ये तो सब माँ बोलती है, लेकिन मैं इसकी गहराई बताऊंगा। 3 मंत्र दिया था, बड़ा बनना, अच्छा बनना और नामाधीन बनना। कोई लिमिट नहीं दिया। भगवान को भी प्रॉब्लम आ गया कि कहाँ तक बड़ा।
तो हिंदी तो होनी है, कहां तक ना। ये देखो, कोई यूनिवर्सिटी में ये नहीं सिखाएगा। एक माँ सिखाती है कि ये हृदय से आता है, ये नाभि से आता है। हर कोई माँ बोलती है कि माँ का हम सुनते नहीं, अपनी माँ का, अपनी माँ बाप का हम नहीं सुनते। तो ओल्ड है, इसको नहीं पता, तेरे को नहीं पता, तेरे को नहीं पता, ये तेरे को नहीं पता, उसको क्या पता? ये हमको नहीं पता है। माँ को ये 3 मंत्र में ये कोई भी सर डिसीजन लिया, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, ना तो कोई ऐसा कोई एडवाइजर लिखा था, ना तो सलाहकार था, ना तो ये भी कोई एजुकेशन था। हीरा घसते घसते जितनी समझ थी इतना करते गए। बहुत ऐसे बोले तो नानी उम्र में पैसा भी आ गया था, क्योंकि मैंने 17-18 साल में हीरा की कारखाना चालू कर दिया था। मैं हीरा घसता था और कारखाना चलाता था, सब मिलकर हीरा घसते थे। हीरा बना के बाजार में मैं बेचने जाता था, दूसरे दिन बाजार में खरीदने जाता था। तो पैसा बहुत जल्दी आ गया था, ऐसा नहीं था। 81 में मैं इजराइल गया था, फॉरेन जाना चालू कर दिया था। अच्छा, युवानी भी थी, प्रलोभन भी था, पैसा भी था, लेकिन ये माँ का जो 3 मंत्र था, अच्छा आदमी बनना। जहां जहां बुराई आने वाली थी वहां माँ याद आई, बुराई नहीं आई। कोई भी डिसीजन लिया, पैसे के लिए पैसा तो आ जाएगा, लेकिन नाम तो अच्छा रहेगा नहीं। माँ का सूत्र याद आया, ये गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सब माँ का मंत्र में आ जाता है। सब भी पूरा महाभारत, पूरी गीता, पूरा बाइबल, पूरा यूनिवर्सिटी, ये 3 शब्द में समझो। अभी मेरा 63 साल हुआ। पैसा तो हम 4 भाई मिलके, पूरा परिवार मिलके, हमारा जो हैसियत था और हमारा लेवल था, इससे ज्यादा अभी मिला। मैं काफी बार बोलता हूं, मेरे पास आज भी कोई नॉलेज नहीं, मेरे को आज भी कुछ नहीं आता। मैं काफी बार बोल चुका हूं, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूं, पर जीवन में पिलाई ने फिलोसोफर बन गया। बहुत अच्छी तरह से बोल नहीं सकता, या तो अच्छी तरह से डिसीजन नहीं ले सकता, कोई ऐसा मैजिक नहीं है। लेकिन मैं जो डिसीजन लेता हूं आंख से लेता हूं, स्मार्ट से नहीं। होशियारी का कोई काम कभी नहीं किया। जो डिसीजन लिया हो दिल से लिया, हृदय से लिया, और हृदय सबके पास है और वही सही रास्ता देता है। आज तक एक भी डिसीजन रॉन्ग नहीं पड़ा है, जो भी लिया सही हुआ। क्यों? कि हृदय का डिसीजन लिया, दिमाग का नहीं लिया। तो ये माने हर बार डिसीजन में अच्छा तो रहूंगा नहीं, पैसा तो आएगा नहीं, नाम तो होगा नहीं। ये तीनों मैनेजर है, जब ये पद्मश्री मिला तभी आज सबसे अच्छी बात वो है, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, हम लोग घर में 64 लोग हैं और एक बच्चा मिला हुआ 2 महीने पहले पैदा हुआ, और 87 साल का मेरा फादर, सभी एक साथ रहते हैं और सभी तंदुरुस्त है, एक भी कोई बीमारी नहीं। 87 से 2 साल 2 मंथ का बेटा है, हम लोग ज्वाइंट रहते हैं। तो आज भी मैं सबको यही बात करता हूँ, जो भी करो दिल से करो, जो भी डिसीजन लो दिल से लो। पैसा तो बाय प्रोडक्ट आएगा। ये आज भी मदर फादर स्ट्रॉन्ग है, आज भी वर्क करता है, डिसीजन मेकर है, फॉलोअर नहीं है, मेकर है, और किसी की सुनता नहीं है।
काम लिया, मैं भी ऐसा ही हूं, बेटा भी ऐसा ही है। हेलो, लेकिन फिर भी एक मंत्र है, कर भला जियो सबका मंगल। ये विपश्यना में से सीखा मैंने 15-17 साल पहले विपश्यना, सबका मंगल। सब पहले से स्टार्ट होता है, मेरा मंगल हो गए प्रार्थना, दूसरा तेरा मंगल हो गए, बाद में तीसरा सभी का मंगल हो गए, पूरी सृष्टि का मंगल हो गए। बहुत बड़ी प्रार्थना है। हमारा एक दर्शन, हमारी माँ का ये भी था कि गलत अच्छा आदमी बनना, बड़ा आदमी बनना, गुरनामा की। जब पद्मश्री मिला तभी मेरी माँ थी, फादर भी थे, और सब हमने कभी फंक्शन रखा था, क्योंकि हमारे लिए, हमारी यूनिवर्सिटी के लिए डायमंड में 200 साल में किसी ने भी सोशल काम में पद्मश्री मिला ऐसा नहीं बना था 200 साल में इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री के लिए भी प्राउड, सूरत के लिए भी प्राउड था। और कभी मैंने माँ को बताया, मैं इसके पहले बता दूं कि 2000 की साल में ऐसे ही एक होटल में मैंने जितेंद्र हटिया का प्रोग्राम सुना था। बाद में ये बात 2000 की साल में मैंने ये प्रोग्राम सुना था, तभी मैंने मेरा गोल 60 बना लिया कि 2000 साल 2000 के 5 साल में हमारी कंपनी कहाँ पे जाएगी। देखा ये ऑटोमेटिकली कुदरत ने कैसे हमको ले गए, नेचर कैसे काम करते हैं, अच्छी भावना कैसे काम करती है, इसके पीछे रहस्य आपको ये पता चल जाएगा। 2000 में मैंने लिखा था 5 साल में हमारी कंपनी कहाँ पे पहुंचेगी, दूसरा 5 साल के लिए कहाँ पे पहुंचेगी, तीसरा 5 साल 15 साल में कहाँ पे पहुंचेगी, और बाद में 10 साल का गेम रखा था 2025 में कहाँ पे पहुंचे ये लिखा हुआ। और ये सब काफी बार मैंने शेयरिंग किया हुआ कि 5 साल में मैंने लिखा था सूरत में नंबर 1 करेंगे, ऐसा लिख दिया। तभी मेरा 100 करोड़ का एक्सपोर्ट का काम था, 200 करोड़ का होगा, आई डोंट नो, 100-200 का काम था, मैंने सूरत में नंबर 1 बोल दिया। और 10 साल में इंडिया में नंबर 1 लिख दिया, और 15 साल में इंडिया में नंबर 1 ऐसा मैंने लिख दिया। अभी मैं पूरी इंडस्ट्री में नंबर 1 पे नहीं पहुंचा, लेकिन मैं ये रहस्य बता रहा हूं, कैसे सिद्ध होता है वो बता रहा हूं। और 25 साल में पूरा विश्व में कंपनी नंबर 1 तो पहुंचेगी, लेकिन सामाजिक लेवल पर नंबर 1 बनेगी। सामाजिक नंबर 1 बनेगी। 2025 से 23 में मेरे को पद्मश्री मिल गया, नंबर 1 हो ही नहीं है। हेलो कैसे क्या कोई खाने को नहीं, अभी इससे ज्यादा पैसा खाएंगे कहाँ, लेकिन नाम की जो भूख थी तो नंबर 1 2023 में पद्मश्री मिला, तो भारत सरकार ने सर्टिफिकेट दे दिया। अभी क्या चाहिए? तो सभी ने मां को बताया कि तेरा तीसरा सपना पूरा होता है कि कौन सा तुम्हारा बात बड़ा तो हूं, आपको बराबर सेटिस्फाई है। वो काफी बार बोलता है तू पैसा बहुत खर्च कर रहा है, माँ और मदर को शर्म होता है। मैं बोलता हूँ तेरे काम में कितना पैसा रख लूँ, बाद में मैं खर्च करूँ, वो तुमने ये तेरे को नहीं पहुंचा था, छोड़ दे बात। वो माँ तो माँ है भाई, उसको लागनी होती है, उसको भाव होता है। माँ के सामने कोई नहीं टिकता, और माँ को काम ही नहीं मिलते, उसके सामने कोई नहीं आया। तो माँ को बोला बड़ा हो गया, अच्छा तो मैं हुई, वो सबको भरोसा है, और अभी नाम भी हो गया। अभी तेरा सपना पूरा, अभी दूसरा सपना मत दिखाना, अभी मेरा सपना चालू होगा। अभी तो इसलिए मैं काफी बार बोलता हूँ कि 63 हो गया, अभी भी 40 साल जीने का। और मैंने जांच किया, कभी कुछ नहीं था, 12 रुपये जेब में माने टिकट लिया था और सूरत आया था। और ये लिंक होती है, आप लोग ऐसे वेयर भाव से ये कोर्स नहीं करा रहा, उधर पैसे का। हेलो, टिकट का पैसा माने 12 रुपया, 12.5 एज थी, आधी टिकट थी, वरना 25 रुपया टिकट होती थी। तो एज तो मेरी 12.5 थी, लेकिन 12 बोले तो आधी टिकट लगती थी।
वो तभी भी मालूम है, बात माँ के सामने माँ ने बेटे ने दोनों ने झूठ बोला कि 12 साल का है, तभी उतना मालूम है। तो आधी टिकट लेके आए थे, एक भी पैसा जेब में नहीं था, और आज हम 15,000 करोड़ का 17,000 करोड़ का पूरा कैसे कैलकुलेशन करें, आई डोंट नो। कारण कि अभी आपका ये जरूरत अभी स्टार्टअप का करने लगा तो वैल्यू है, हमारी वैल्यू तो कुछ नहीं है। डायमंड है यार, इतना काम करते हैं तो वैल्यू पे अभी धंधा दुनिया चल रही है, कोई पैसा कितना भी कमाई हो, वैल्यू ये है यार, कौन सी वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। डायमंड है मैन्युफैक्चरिंग में हम 25 साल से हैं, टॉप 3 में, भले गाड़ियां मार, लेकिन हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा भाई, कोई नहीं करेगा। तो आज की वैल्यू की एक में 2 भी गिनती करो, लेकिन माँ को बताया था कि अभी मेरा सपना चालू है, मैं बोल रहा हूँ कि अभी मेरा सपना स्टार्ट हुआ है। 40 साल का 400 साल का करके मर चुका है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हमारा इतना ट्रांसपेरेंसी गोल है, इतना क्लियर विजन है, और किसके लिए करने का है, अपने लिए नहीं, समाज के लिए, नेचर के लिए, एनवायरमेंट के लिए और राष्ट्र के लिए जीने का है, किसी के लिए नहीं। तो कुदरत ये जो होगी, आप लोग धार्मिक तो है, भगवान को मानते ही है, हेलो, ये शायद उम्र मेरी कम लिखी होगी, विधाता ने तो बढ़ाएगा, उसको जरूरत होगी तो बढ़ाएगी। हेलो, हमको इसमें में चला जाओ तो घबराने का नहीं, वहां शादी जरूरत होगी। हेलो, फिर वापस अच्छे आदमी को भेजने का है तो अच्छी पोस्ट लेके, अच्छा प्रमोशन लेके भेजेंगे ना, तो ले जाएंगे तो भेजेंगे ना, घबराने का नहीं, चिंता नहीं करने का। यही मेरा विजन है, यही मेरा गोल है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सोसाइटी के लिए। और इसमें जो खुशी है वो कोई दुनिया की सिटी में खुशी नहीं मिलेगी। मैं बोलता सबसे हैप्पी, सबसे खुश आदमी में से मैं हूं। हेलो, या वेरी हैप्पी, जहां तक मैं पहुंचता हूं, आप इसलिए खुश हो, इसलिए हैप्पी हो। आप 5 साल से नरेंद्र भाई को मैं बोल रहा हूं, भारत माता का सरोवर आपको ओपनिंग करने का, और खुले मैं बोलता हूँ। अभी आप नरेंद्र भाई बैठे स्टेज पर, मैंने अवकार प्रवचन दिया ये 6 महीने पहले, नरेंद्र भाई बोलते हैं तो थोड़ी कॉपी की जाती है, वाइब्रेशन आ जाता है, लेकिन मेरा कौन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों ने बोला था कि लिख के लाना, जो बोलना है अप्रूवल लेना पड़ता है सर, और मैंने कभी लिख के लाके कभी बोला नहीं लाई। 15 दिन लिख के लाने के, लिख के बोलने की 15 दिन प्रैक्टिस किया। बोले जो बोलना है उसका अप्रूवल लेना पड़ता है, और वही शब्द बोला और मुझे कर लिया, आपने तो मेरा पक्का हो गया, पक्का हो गया, कभी पढ़ के ही बोलो, एक शब्द ज्यादा नहीं। और मैंने बोला पढ़ा, लेकिन भारत माता सरोवर का 5 साल से बोल रहा था आपको ओपन करने का, और जब भी आप कहे तभी ये सरोवर किसी से ओपनिंग नहीं होगा, आपसे ही होगा। ये मैंने बोल, हर साल एक बार पूरा साल का डेटा देने, या तो कोई भी फंक्शन हमारे घर में इतने लोग हैं कि शादी का कार्ड देने जाता है। मेरी बेटी की शादी में 2007 में आया था, अब ये द्रव्य की शादी में ये साल आया, 17 के बाद, 2007 के बाद आया। ओके, मैंने बोला था आपको ही करने का है, आप रिटायर हो जाएंगे तभी करेंगे, कब तक बकरी की मां खेल मनाएंगे, लेकिन कराने का आपसे। वो तो मैं बोलता ही था, 5 साल चले गए, आए नहीं, और बेटे की शादी थी इसलिए कार्ड देने गए, तो तारीख ले ली, मैंने तारीख ले ली शादी करने की। तारीख के पहले आपको भारत माता का सरोवर ओपनिंग करने का है, और तारीख के पहले आप कौन सा दिन भी बोले, कौन सी तारीख भी बोले, कौन सा प्लेस बोले, मैं शादी कर लूं। आपका समय आपको आने का। 7 साल से राष्ट्र के लिए मैंने काम किया है। नो एनी डे को साथ में लेके जाता हूँ, मैं सभी जाता हूँ,
बेटे को साथ में लेके जाता हूँ, 3 बेटा साथ में होता ही है। और ये आज क्योंकि सीखे बोलता है यार तू तेरा काम है वो अपॉइंटमेंट लिखा था, नाम लिखा था, तो ये सब क्या काम है, तो तेरे को क्या मतलब है यार, वो आता है तो भाई प्रोडक्ट मेरे को क्या मतलब है, वो समय थोड़ा दिखा था मेरे साथ आएगा, कुछ सुनेगा, मोटिवेट मिलेगा, वो नरेंद्र भाई के साथ कैसे बैठ सकता, तो मेरे को नहीं पहुंचा जाता, ऐसे वो टाइम दे देता है। एक बार तो मेरे को भाई को आने का, चारों भाई को आने, अरे ये सब क्या काम है, मेरी भाई ने चारों भाई सपोर्ट करता है इसलिए मैं तलाव कर रहा हूँ, भाई उसको भी मिलना चाहिए था दिया। तो शादी का मैंने उसको निमंत्रण दिया और जैसे मैंने तारीख दिया, आने का पक्का है, मैं राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये बेटा साथ में है, कभी कोई काम नहीं मिल जाएगा, भगवान ने कुछ इनाम दे दिया। और ऐसे रास्ते पे हम चलते हैं, कभी कोई आधा पेड़े में चलते ही है कि कभी किसी की जरूरत भी कम पड़ेगी, शायद जाना ही नहीं पड़े। बच्चे को बोला कभी भी हम यूज नहीं करें, हमारी जो परिचय है, पहचान है, इसका कभी यूज नहीं करेंगे। पुलिस वाला पकड़ गया तो तू सुख लिया, हमारा नाम कभी यूज नहीं करना, ऐसे रास्ते पे नहीं जाना कि पुलिस वाला पकड़ के जा, ये हमारा फंडा क्लियर है। बेटा साथ में कभी भी काम लेके नहीं आएगा, लेकिन हमारी अपेक्षा रहती है आप जैसी हस्ती बेटे की शादी में आए, एक ही अपेक्षा है आपको आने का। आया 10 दिन 15 दिन के बाद ये वाघ बारस है, दिवाली के पहले 2 दिन जहाँ भारत माता का ओपनिंग करेंगे तो वहाँ तो शादी कर सकता है। मैंने बोला वाघ बारस या सिंह बारस, जो बोले वो कर लेंगे। फैमिली किया और शादी किया, और ये कि मैं इसलिए बोलता हूँ ये सब कुछ पानी की वजह से हुआ। ये कोई इसको 500 करोड़, काफी लोगों को पूछते 500 किया सुनने तुमने शादी में आया, लेकिन मेरे को नहीं डायरेक्ट पूछते, मेरे फ्रेंड को पूछते कितना उसने फंड दिया, ये आदमी 500 नहीं 5000 में ये खरीद सकते हैं, ऐसी मस्ती हमने ये पाई है भारत। आपको 500 का चेक भेजो नहीं आएगा, मैंने बोला 50 करोड़ आप यूज करो समाज के लिए, वो आदमी घर पे आएगा। तो 100 करोड़ खर्च कर मैं तेरे को लाके घर में दूंगा, लेकिन किसके लिए, राष्ट्र के लिए, नेचर के लिए, समाज के लिए। तीसरे ऐसा काम कर अपने आप आएगा, पानी का काम की वजह से आया, अच्छे काम की वजह से आया, ये ही उसकी क्वालिटी है। और नेचर ऐसे काम करती है, मैंने जैसे लिखा था 2025 में, 2023 में अचीवमेंट हो गया, लेकिन मैंने क्या लिखा था आपने भी गहराई से वो सुना लेकिन समझा नहीं। मैंने क्या लिखा था, मेरी कंपनी जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी कंपनी 2005 में कहाँ पे खुलेगी, 2010 में, 2015 में, 20 में, और नाम होगा तो विश्व में सामाजिक लेवल में। ये गोल था। जब भी हमारा, मैं इसलिए बोलता हूँ, जब भी हमारा सार्वजनिक गोल होता है तो सार्वजनिक शक्ति हमारा गोल को अचीव करने में काम पे लग सकती है। सब नेचर का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें कोई समझता नहीं है, 1 1 2 होता है, आप करेंगे तो आप भी वही पाएंगे। ये हमारा माँ बाप का, सभी का माँ बाप यही बोलते हैं, लेकिन प्रलोभन की वजह से, लालच की वजह से हम गलती कर बैठे। आई थिंक सो ये जवाब में ही पूरा सेशन खत्म हो सकता है, लेकिन आपका दूसरा सवाल है तो मैं बता दूं कि मेरी स्टोरी में मैंने बताया था पहले, अब 1 सवाल पूछेंगे तो ये कितना लगेगा यार, आपको 10 सवाल क्लियर करना, आपको 2 मन में आवे पूछो, दूसरा सवाल में आपको आ जाए। थैंक यू। तो सावजी भाई के लिए तो हमने बहुत तालियां बजाई हैं, तालियां इनकी माँ के लिए भी बजी हैं। बड़ा बनना आसान है, नाम होना भी आसान है अगर एक व्यक्ति अगर मेहनत करे सही दिशा में तो, बट इस प्रोसेस में अच्छे बने रहना, जो आपकी माँ की सीख थी कि अच्छे भी बने रहना है, वो कठिन है। और इस अच्छाई में अपना अच्छा करते करते ये भी सोचना, समझना और करना समाज के लिए और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी। तो कई बार मैं लोगों से सुनती हूँ, काश मैं भी सावजी भाई का एम्प्लॉय होता तो एक मर्सिडीज मुझे भी मिलती। तो
जहाँ हम ऐसे समाज में रहते हैं कि कोई एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना बहुत बड़ी बात होती है और हम सब जानना चाहते हैं कि ये जो आपने 4000 से ऊपर आपके एम्प्लॉयज़ को आपने गाड़ी दी है, गाड़ियाँ दी हैं, आपने घर भी बनवाए हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, आपने गहने भी दिए हैं और हम सब चाहते हैं बहुत कुछ लेना, पर सीमाएं हम खुद ही बना लेते हैं। थोड़ा इसके बारे में प्लीज। बहुत अच्छा ये पॉइंट है। ये बीए को, बीबीए को, सागर अकाउंट को ये बात जमती नहीं, ऐसी नहीं। ये दिल की बात है। देने से क्या मिलता है ये जीवता जागता ये उदाहरण है। अपनी बात इसलिए मैं शेयर करता हूँ बड़ाई करने के लिए नहीं। कोई भी ये करेगा उसको ये मिलेगा, ये नीति का नियम है। जब भी मैंने 95 में 3 कार लिया था, 95 में मेरे पास किया थी और एम्प्लॉय को राजीव गांधी ने तभी ये मारुति 800 लॉन्च किया था। पहली बार इंपोर्टेड कार भारत में हजारों साल के 100 साल के बाद आई थी। वो मारुति 800 आई थी और 52,000 रुपया उसकी कीमत थी। और गाड़ी का मेरे को बहुत पागल की तरह देने का शौक था, लेने का नहीं। लेकिन मिलती है वो भी मैं शेयर करूंगा। तो देने का शौक था और कितना भी पैसा दो सर, कितना भी पैसा दो अगर तो साला कम ही पड़ता है, कितना पेट भरता ही नहीं है। गाड़ी पूरा फैमिली यूज कर रही है, पूरी दुनिया देख रही है। गाड़ी से तो मोटिवेशन है। बिजनेस प्रैक्टिस थी, कोई गाड़ी ऐसा कुछ किया ऐसा कुछ नहीं था। इसके पीछे लॉजिक बेस्ड बिजनेस प्रैक्टिस आपसे ही सीखा हूँ, इतना मेरे को आता नहीं था। ये प्रैक्टिस थी बेस्ड बिजनेस करने की। श्योर बिजनेस है, नो डाउन है, नो क्या है। उसने जो मेरे को दिया उसका मैंने 10% रिटर्न दिया। तो जो हम कुदरत को देंगे तो कितना पैसा रिटर्न मिलेगा। मैं एग्जाम्पल दूँ तो मैंने 3 लाख 95 में दिया था। वो तीनों थी मेरा बेस्ट एम्प्लॉय मैनेजर था। वो टाइम में मैंने 3 मारुति दिया था। पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी। चला इंडस्ट्री बिगाड़ रहा है, सिस्टम बिगाड़ रहा है, एम्प्लॉय बिगाड़ रहा है, अगली साल क्या देगा, बिना पढ़ा लिखा है, चला बैंक करंट होगा, ये होगा, धंधा करने की कोई उसको बुद्धि नहीं है। बड़े बड़े लोग कैसे बोलेंगे, उसको क्या देना। काफी लोग तभी फोन आते थे, सर हमारे शेख ने तो 1 मिठाई का बॉक्स दे दिया, क्या लो चलो, ऐसा भी फोन आता था। बड़े बड़े शेख होते हैं, सबके दिमाग में तो ये नहीं बैठेगा। मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था, ऐसा कोई इरादा नहीं था कि किसी को नीचा दिखाने का। मेरे को देने का शौक था। मैंने कभी दिमाग यूज नहीं किया, दिल यूज किया, जो दिल में बोला वो किया। किसी से मैंने पूछा भी नहीं। हाँ, इसमें तो मेरी पार्टनरशिप भी अलग हो गई, क्योंकि कभी मैंने किसी का फाइनेंस लिया था। हम 4 भाई थे, मेरे को बड़ा बिजनेस बनाने का था। हमारे पास पैसा था, वो कम पड़ रहा था और मैं बैंक में जाता था तो बोले आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है। हेलो, हमको प्रोफाइल बनाना ही नहीं आता था, अच्छी कहाँ से होगी। मैंने खातूना बोला इसमें 4 भाई है, चारों का टोटल लगाऊं तो ग्रेजुएट नहीं होते हैं, मैं एक्सपोर्ट करता। एक मेरा रिलेटिव था, उसको मेरी कैपेबिलिटी की पता थी, मेरी टीम की पता थी। मेरे 4 भाई थे और 3 मेरे को दोस्त थे। 7 लोग हम काम कर रहे थे। तभी मेरे पास 1 करोड़ रुपये था, 1 करोड़ रुपया था मेरे पास और मेरे को बड़ा काम करने का था। मेरे पास टीम थी, इसलिए मैं काफी बार बोलता हूँ मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरे को कुछ पता नहीं है, आज भी कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता है किसको पता है। मेरे पास टीम थी तभी 91 की बात कर रहा हूँ, 87 की 88 की बात कर रहा हूँ। तो 1 करोड़ रुपया उसने मेरे को दिया और बोला टका वाली तू जो गए वो। तो मैंने अपने दिमाग से ये लोगों को फाइनेंस वाले को मेरे को आज शेयर कर रहा हूँ। पहली बार मेरे को कुछ पता नहीं कि कितना शेयर देना चाहिए, लेकिन मैंने क्या शेयर किया
कि भाई हम 3 भाई है, 4 भाई है, मेरे पास 1 करोड़ है, वो 1 करोड़ दे रहे हैं, तो 33% हुआ। लेकिन स्मार्ट दिमाग से उसको बोला कि 1/4 में हिस्सा मिला। बोले थोड़ा करा मेरे को पूरी लाइफ चला नहीं पाएगा, टकावारी बढ़ाने का कोशिश मत करो यार, हम 4 भाई दिल से मेहनत करेंगे, हमारे को काम मेरे को पता है। तो हमने स्टार्ट कर दिया, उसने 1 करोड़ का हमको फाइनेंस किया और हमने 25% का शेयर किया। तब से हमने चालू किया 1 करोड़ का ये लेवल पे हमने एक्सपोर्ट का चालू किया। तभी इतना बड़ा बन गया कैसे नहीं, लेकिन हमारे पास टीम थी, तभी मैंने 3 कार दिया। तो ये 25% वाला पार्टनर तो बिगड़े मेरे से 3 गुना नहीं 10 गुना बड़ा था। हेलो, क्योंकि मेरी कंपनी ने 1 करोड़ फाइनेंस किया तो बड़ा ही होगा ना, और तभी तो रिलेशन था, तेरे को नहीं लेना चाहिए, डिसीजन में डोंट डिस्टर्ब मी। हेलो, 75% मेरा है, मैं वो भी निर्णय ले सकता हूँ, वो भी टिकड़ी थी। बाद में मैं लाइफ में शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बोला भाई कि मेरे को जो पसंद है मेरे को। और आई बहुत भयंकर मंदी 6 महीने के बाद, और वो आया, हमको अलग हो जाना है, कोई बात नहीं, मैंने वैसे बोल दिया वो बात होते छोड़ देते। 3 कार दिया था, वो लोग आज भी मेरे साथ है, हरि कृष्ण का पार्टनर है, 3 कार में कोई लाइन दे दी, उसका बेटा काम कर रहा है, दूसरी पेटी में भी 52,000 में इतना सारा मिलता है। माय फ्रेंड, इन्वेस्ट करो, 100 गुना मिलेगा। ये 52,000 की कार में मेरे साथ ये पार्टनर है, उसका जनरेशन इसकी पेटी भी मेरे साथ है, और आज हमारा हरि कृष्ण का पूरा मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग पूरी टीम में वो इन्वॉल्व है। सवाल तो ये मिलता है देने से, जरा कहने का मतलब ये बाद में थोड़ा आसान लगा, पार्टनरशिप अलग हुई देने से, लेकिन मेरा मन और मेरा स्वभाव तो नहीं बदला, थोड़ा कैपेबल हुआ, अलग हो गया। फिर से मैंने 15 कार दिया, फिर से मैंने 17 कार दिया, फिर से मैंने 85 जैसी कार दिया। लेकिन 2014 में जारे 90 और 90 एक साथ कार दिया, तभी हाईलाइट हुआ। और मैं बताऊँ आपको, ये फाइनेंस में नहीं बैठता है, ये हमने प्रोग्राम, जब टेक्नोलॉजी आई, नई टेक्नोलॉजी आई, हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो आंख बंद करके पहले टेक्नोलॉजी में चला लो, बाद में देख के रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। हम लोग क्या बोले, पहले रिजल्ट मिले बाद में एक्सेप्ट करें, तब तक तो लेट हो जाता है, पहले पैसा फेंको। तो हमने टेक्नोलॉजी किया, तो मेरे को ये अनपढ़ था, लेकिन अंदर से कुछ भगवान ने स्किल दिया, वो तो ये पता चल गया कि ये प्रोग्राम बढ़िया, हम इसका आइडेंटिफाई करके एक एक आदमी का कितना क्वालिटी वाला काम है, कितना वैल्यू बढ़ाता है, कितना नुकसान कम करता है, कितना स्पीड से काम करता है, कितना ग्रोथ कर सकता है, सभी का ये प्रोग्राम प्लान बना लेते हैं। हमने ये प्रोग्राम ले लिया, बना दिया, तभी तो प्रोग्राम वाले हमारे यहाँ नौकरी भी नहीं आते थे। बोले आप इस मेरे को पहले प्लान दो कि आपको क्या करने का है, तो हम लोग करेंगे यार, आपको तुमको पता नहीं आपको क्या करेगा, मेरे को पता होता क्या करने का, तो तेरी जरूरत पड़ती है, तू बता मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है, कौन अच्छा काम करता है, कौन क्वालिटी वाला करता है, कौन वैल्यू ऐड करता है, कौन कम नुकसान करता है, किसको कितनी एक्सपर्टाइज है, मेरे को कितना पैसा देना पड़ता है, तो ये टाइम पे हम फिक्स पगार देते। तो धीरे धीरे हम उसका अलग करते गए। काफी लोग थे जिसका हम 25,000 पगार, 15,000 पगार देते थे, वो ये 15,000 सामने से दे तो भी काम का नहीं था, और एक आदमी का उसको लाख दो तो भी वो कम प्रोडक्शन कॉस्ट पे आता था। पहले तो क्या था, वो संबंधी होते हैं, उसका आय होता है, पंची करे, रोज मन पाखंड लगावे, उसकी सैलरी लगी होती है, पहले से डिसीजन लेता है, हमारा तो ऐसा चलता है। लेकिन इसकी वजह से हुआ ऐसा, जैसे मैंने 500 कार दिया, 52 करोड़ का बजट था, कहाँ से पैसा लाएंगे, इनकम टैक्स वाला आएगा, उसमें सर्विस टैक्स भी लगता है ना, बोनस टैक्स भी लगता है,
यार बोनस मैंने तो फ्री में दिया और बोनस कहाँ से, वो भी आइडिया आया। सब बोलते थे सीए चार्टर्ड अकाउंट ये सब दिक्कत आएगी, इनकम टैक्स वाला आएगा पूछेगा आओ करोड़ रुपये की आपने कहा, और 12 करोड़ रुपया ऑफिशियल हमारे जेब में नहीं था, और 52 करोड़ का गाड़ी का चेक कहाँ से दे रहे? डिसीजन लेने का था, ले लिया था, देने का पक्का है, रास्ता निकाला। वो रुकने वाला नहीं है सर, ये मीटिंग फाइनल है क्योंकि हमारे पास पैसा था लेकिन ऑफिसर नहीं था। रास्ता निकाला, रात तीन दिन सोचा, दिवाली नजदीक आ रही है, डिसीजन लेने का था, ऑर्डर देने का था, कंपनी को बुला रहे थे, एक साथ 500 लाख का सौदा कर रहे थे और डिस्काउंट चाहिए, इसने 1 लाख रुपए का 1 लाख में डिस्काउंट दिया, डायरी कंपनी से डील किया, तो हमारा 1 लाख में 25% हुआ, तो इंस्टॉलमेंट में जो ब्याज लगता था, ये लगता था, ये सब कुछ दोनों को खत्म हो गया। इंटरेस्ट रेट बात है, सोचा है यार कहीं डिस्कशन होती है ना, एम्प्लॉय चला जाएगा तो क्या करेगा, ये करेगा, अभी नहीं देना चाहिए, तो पैसा तो भी हम कमा देंगे सर, कभी किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करते हैं ना तो सबको पूछना पड़ता। कभी ऑफिस में नहीं आए हैं, कभी इंटरव्यू नहीं हुआ है और खर्चा करते हैं तभी वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। जॉइंट फैमिली है तो उसको पूछे, ये भी एक दिक्कत थी, दिमाग में प्रेशर आया, देने का पक्का है, रास्ता निकल दिमाग में से आया, तो ऐसा करते हैं, हमने दिया कैसे वो बताओ। सभी एम्प्लॉय हमारे पास डेटा था, उसको हमने इसलिए कार का डिसीजन लिया था, क्वालिफाई हुए थे 500 लोग, गहने के लिए कार होती है तो गहना देते हैं, और गहना और कार दोनों नहीं देते जो घर नहीं होते, इसको ये पैसा घर के लिए देते, ये हमने पॉलिसी की, वरना तो कार ले लेंगे, घर नहीं लेंगे, पहले कार ले लेंगे, पहले घर होना चाहिए, बाद में कार होना चाहिए, कार घर हो गया, बाद में गहना होना, वाइफ का नंबर लगना चाहिए, क्योंकि वाइफ भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, इसकी भी काफी स्टोरी है, मैं बताऊंगा बाद में। तो ये सिस्टम के चलते तो हमने क्या किया, लोन ले लो, कारीगर के नाम पे ले लो, हमारा 10% जो देने वाले हैं बैंक से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, इंस्टॉलमेंट हर महीने कंपनी भरेगी, जो इंस्टॉलमेंट आता है वो कंपनी पे करेगी, कारीगर के नाम पे गाड़ी आ गई, सबके नाम पे लोन ले ली, ब्याज तो हमने खत्म कर दिया डिस्काउंट लेके, किसको ब्याज तो लगने वाला नहीं है, 4 साल का इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो गाड़ी फ्री हो जाएगी, 4 साल में प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर अपने आप हर महीने पैसा खर्च में चले जाएगा, ना तेरा गया ना मेरा गया, सबकी कार हो गई। और मैं अमेरिका जाने वाला था वैकेशन में पूरा फैमिली, तो पहले ही इनकम टैक्स को सब बता के गया, तो आना मत, तो ये सबसे गाड़ी लिया, नो टैक्स नो सर्विस टैक्स, आज भी वो सबसे 10 साल बाद देते गए, ये हमारा मोटिवेशनल प्रोग्राम था और सबके सामने दिया था, सरप्राइज दिया था, कभी पूरा फैमिली को लेके दिया था, ऐसे ही फंक्शन रखा था, 6,000-7,000 लोग बैठे थे और सबका अनाउंस किया, इसको कार लगती है, इसको लगती है, जो उसकी आंख में खुशी थी, एक आंख में खुशी का आंसू था, एक आंख में बुरे का आंसू था, ये कौन करने लगे, मेरे को कार नहीं आती है, कार लगी है तो आधा लेने के लिए, और बाजू में सब बैठे थे जिसको नहीं लगी थी, बोले तेरे को नहीं लगी पापा, भाई को आपको नहीं लगी, पापा क्या बोले, तो ऑडिशन लगने वाली है, अभी सारा 3 लाख मैंने किया, 1700 कार क्वालिफाई हुई, उसको भी कार लगी, सबके सामने बोलता हूँ, वो लोग हमारे यहाँ 0% से काम करते हैं, इतनी वैल्यू ऐड करते हैं, उसकी सैलरी तो खरेखर 0 है, हमने कुछ नहीं दिया, उससे लिया, उसका हिसाब किया है पक्का।
ये कुदरत भी अपने से हिसाब करेगा जितने पैसे वाले हैं दुनिया के लिए, देश के लिए, एनवायरमेंट के लिए, समाज के लिए क्या किया। तो पैसा कमा के आ गए, कोई काम ना नहीं है। कल मैं सुन रहा था अग्रवाल को, अनिल अग्रवाल को, जो खर्चा किया वो मैं बोलता हूँ मुझे मजा आ गया। खर्चा किया वही आपका पैसा है। आप जब बच्चे को लेके जाएंगे ये आपका नहीं है, वो क्या शायद जो 100 गुना करेगा तो भी आपका नहीं है, और 100 पट करेगा तो भी आपका नहीं है। आप देखे मत जाए, वो तो कैपेबल है, कर लेगा। मैं आज भी द्रव्यों को काफी बार बोल चुका हूँ, मैं कुछ बचाने वाला नहीं, मैं जो कमाया वो खर्च करके खाने वाला हूँ। तेरे को मेरा एडवांटेज लेना है तो भी मेरे पास पैसा है, नाम है, इज्जत है, पहचान है, तेरे को पढ़ाया लिखाया, बुद्धि दिया, सब कुछ दिया। अभी तू एडवांटेज लेना चालू कर दे, तू कमाना चालू कर दे, मैं तो खर्च करके खाने वाला। ये मेरा सपना है, और मैं इसलिए देता हूँ कार तो मेरे को ज्यादा मिले, कोई दया नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, और फिर भी मैं बताता हूँ मिलता है कार। कभी मैंने कार दिया ना, कभी 5 लाख का ये बजट का कार था, 1 लाख का डिस्काउंट दिया था, 4 लाख का था। कभी इंटरव्यू में रवीश कुमार ने पूछा था, आप भारत की बड़ी कंपनी होते सबसे तो क्या देते? मैंने बोला मर्सिडीज देते। क्या देते हो? ये 5 लाख की करोड़ की मर्सिडीज देते। इसमें कोई सोचने की थोड़ी बात है। 4 साल पहले वो लड़का आया, 4-5 साल पहले उसको वो लड़का जब आप हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग समाज रहा, क्या होगा ये बेंगलोर में पढ़ता। 4 साल पहले, 5 साल पहले रिसेंटली मगर में आया, 25 साल हमारे साथ काम किया। तो 4 लोग थे, 4 को मैंने वो GLS 1 करोड़ की 4 मर्सिडीज दिया। कभी मेरा पुराना पार्टनर जिसने फाइनेंस किया था 95 में बोला तो अभी काम दे रहे, अभी साथ क्या देगा? वो याद आया मर्सिडीज देगा। रवीश कुमार ने पूछा तो पैसे वाला होते क्या करता? मर्सिडीज देगा। वो भी याद आया, वो देख के मैंने नहीं दिया, लेकिन 25 साल जिसने दिया पूरी लाइफ दिया तो एक शौक होता है, मर्सिडीज दिया। तो मेरे पास तो बेंटली होगी नहीं भाई, भगवान मेरे को नहीं देगा, मैं तो मर्सिडीज दे सकता हूँ, तो भगवान मेरे को बेंटली देगा नहीं। मेरे भाई को एनिवर्सरी में मर्सिडीज बेंटली दिया, तो भगवान मेरे को बेंटली देगा? आपको चाहिए तो किसी के लिए नहीं, आपको चाहिए तो इसके ऊपर मुकाबला करने की जरूरत नहीं। और आपने तो अच्छे लोगों से पहचान करा दी, उनको कार मैंने दिया था। एक बार रतन टाटा मिला, किसी ने मेरा परिचय कराया तो मेरे सामने बहुत नहीं देखा, ओके मैंने मेरे कदम में भाग के पकड़ नहीं मिलता है क्या मिले इससे, लेकिन बोला ये कौन है मालूम है? जिसने कार दिया था, बाद में 12 मिनट खड़ा रहा मेरे साथ। रतन टाटा की बात कर रहा हूँ, ये कार ने परिचय दिया पूरी दुनिया में मेरे को। 500 करोड़ की एड करता है तो ये नाम नहीं होता जितना 52 करोड़ में नाम हुआ। देना चालू करो, आप मिल जाएगा। और जो खुशी मिलेगी सर, इसकी कोई भी सीमा नहीं, इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। मैं काफी बार बोलता हूँ क्यों देता हूँ, लेने के लिए कोई सेवा नहीं। और क्यों काम करता हूँ, तलाक का काम, ये काम क्यों करता हूँ सर? काफी बार बहने भी बोलते हैं, अभी तो मदर भी बोलते हैं, बेटा तुझे को सब कुछ मिल गया, अभी तो शांति से देख, वो तो करूँ क्या? शांति से देखना मेरा स्वभाव नहीं है, अभी तो मेरे को क्यों करने का है? क्योंकि ये काम जो ये छोटा एग्जाम्पल से इतनी हैप्पीनेस खुशी मिली, तो मैं नेचर को इतना दे के जाऊँ। मैंने बताया कि 40 साल जीने का है, 400 साल का काम करके मरने का है। इसका मतलब क्या है? नेचर वहाँ पे प्रमोशन रेडी लेके बैठा होगा, देखो बिल गेट्स बनना है, मुकेश अंबानी बनना है, क्या बनना है? इसके लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं करते। हमारा प्रमोशन लाने के वक्त रेडी होना चाहिए, और जब जाते हैं मरते हैं 99% लोग
हंसते नहीं है, मैंने कभी हंसता हुआ चेहरा नहीं दिया जो जाए। मेरे को तो मरते टाइम हंसते हंसते जाने का है, क्योंकि मेरा पोजीशन ये सोच के देते हैं और मैं हंसते हंसते जाऊँ, ऐसा प्रयास कर रहा हूँ और ऐसा आनंद आ रहा है, इतनी खुशी आ रही है। कैसे बोले तो मेरे से काफी बहुत है, लेकिन खुशी मेरे जैसी शायद बहुत कम है। सवाल मेरे पास भी बहुत है और आप लोग के पास भी बहुत है और सुनने को इतना कुछ है कि लग रहा है कि हम सावजी भाई को ही पूरी शाम तक सुन सकते हैं। सावजी भाई, मैं आपसे 2-3 सवाल एक ही साथ पूछ लेती हूँ। एक आपकी जो ताकि हमारे दिल में ये ना रहे कि सावजी भाई आए और इन सवालों का हमें साक्षात आपसे जवाब नहीं मिला। एक जो 12 साल की उम्र से आपने 5 सूत्रों को गांठ बांधे रखा है। एक, आप सब जानते होंगे, इनको लेकमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमारे पास बहुत सारे वीडियोस भी हैं, बट मुझे लग रहा है कि वो वीडियोस में ग्रुप में शेयर कर लूँगी तो बेटर रहेगा। अभी हम इन्हीं को सुनते हैं। एक आपको लेकमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और शायद 165 से भी अधिक 160 से ज़्यादा रेस बन चुकी हैं। तो ये जो कह रहे थे कि 40 साल में 400 साल का काम करके जाना, मेरे ख्याल से वो कर चुके हैं और नेक्स्ट 40 साल में ये क्या करेंगे वो यही जानते हैं। और सबसे भाई, एक मेरा और सवाल है कि जब आपको बिना एप्लीकेशन के आपको पद्मश्री अवार्ड मिला, इन तीनों चीज़ों के बाद बढ़िया भाई, ये पद्मश्री का भी एक स्टोरी है मेरी कार की तरह। ये नरेंद्र भाई का क्या विजन है वो सुनने जैसा है, अच्छा है। ये आदमी को अंतस्फूर्णा कहाँ से होती है और हमको भी होती है। हम ये रास्ते पे चलते हैं, कोई समझदार नहीं है। जब भी जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो अंतस्फूर्णा होती है, देवी शक्ति हमारे में आ जाती है और हमसे निर्णय लिया जाता है। वो नरेंद्र भाई का विजन यही है, उसका सपना यही है। एक आदमी ने मेरे को कहाँ तक पहुंचाया, मैं उसका एक एग्जाम्पल तो हमारी 2017 में हमारी फैक्ट्री का ओपनिंग उसने किया। 2017 पहले मैंने जब जैमन ज्वेलरी पार्क बनाया था सूरत में, तभी वो सीएम थे, उसने ये जमीन अलॉट किया था और तभी मैं कमेटी में था। तो 3-4 बार कमेटी जमीन लेने के लिए, पेपर क्लियर करने के लिए, हम लोग इंडस्ट्री ये करेंगे, ऐसे कमेटी में मैं था। मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ मैं, इसलिए कमेटी मेरे को यूज करती हूँ बाद में। तो नरेंद्र भाई को मैंने वचन दिया था, सबसे बढ़िया फैक्ट्री बनाएंगे, सबसे प्राउड फील करेंगे इंडस्ट्री, गुजरात सरकार और भाजपा की प्राउड फील होगी, ऐसा हम काम करेंगे। ये लोग वो हिसाब से हम लोगों को ये जमीन अलॉट करो। उसने जमीन अलॉट किया, उसका खाद मदद भी किया। मैंने उसको बोला था सबसे बेस्ट फैक्ट्री में बनाऊंगा, टॉप बनाऊंगा और आपको ओपनिंग करने को आना, ऐसी में बनाऊंगा। ये सब बात पुरानी हो गई। 10 साल तक बीच में प्रॉब्लम क्लियर करने में, ऐसे करने में चले गए। फैक्ट्री 10 साल के बाद मैंने स्टार्ट किया और 5 साल बन के मैंने चलाई, तब तक वो पीएम बन गए। और हमारी बात तो बाकी थी फैक्ट्री का ओपनिंग। उसने बोला था मैं करूँगा, मैंने बोला था आपको कराएंगे। मैं जब पीएम बन गया तो गया था, तो मैंने बोला था फैक्ट्री का ओपनिंग आपको करने का, ये हॉस्पिटल का ओपनिंग करने आऊँगा तो तभी तेरी फैक्ट्री का कर दूँगा। तो मैं सूरत वापस आ गया, बच्चे को लेके गया था। तो मैंने कमेटी को बोल दिया, किरण हॉस्पिटल वाली कमेटी को, कि मेरे को नरेंद्र भाई से बात हो गई है और जो भी आपकी किरण की फैक्ट्री हॉस्पिटल का ओपनिंग करेंगे तभी मेरी फैक्ट्री का भी ओपनिंग करेंगे। जब भी आप ये तारीख लेने जाओ तो मेरे को साथ में ले जाना। मैं था नहीं था, मेरे को पता चला वो लोग तारीख लेने चले गए, मेरे को लेके बिना। वो तो ऐसे सोचे ऐसे थोड़ा आएगा नरेंद्र भाई, थोड़ा आएगा समझिए, तो हमारा रिव्यू होता है ना, ये मीठी कॉम्पिटिशन होती है ना। को पता चला मैं ताबड़तोड़ अमेरिका से वापस आया और मैंने नरेंद्र भाई से कहा आपने बोला था किरण की फैक्ट्री का ओपनिंग करेंगे तभी आएंगे। मैंने बोला यार कहते मेरे को डिटेल में तेरी फैक्ट्री देखनी है। सर डिटेल में आप सेलिब्रिटी हो गई है, ऐसे शब्दों में अभी डिटेल मत देखो, अपने आप आएंगे क्योंकि आपकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे समय आप नहीं निकाल पाओगे। आप आते हैं तो मेरे फैक्ट्री में 3 बिल्डिंग बनाया है, बीच में लेन और रास्ता। आप गाड़ी में बैठा
बेटा शक्कर लगा देना, मैं सब एम्प्लॉय को बोल दूंगा ये नरेंद्र भाई आ गया, गाड़ी में से बाय बाय कर देने का है, आप एयरपोर्ट से आता है, किरण में जाएंगे, रास्ते में मेरी फैक्ट्री आती है, 2 मिनट से ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, आपको रास्ता ऐसे ही फैक्ट्री में चला के जाने का। लेकिन सर जाने का आपने बोला है, मैंने फैक्ट्री का फूटा ये सब पता है, वो अर्जुन भी एक अंतर पूरा कि चलो मैं कुछ करता, तो हम होटल नहीं पहुंचे दिल्ली से, उसका घर से, तब तक फोन आ गया, 15 मिनट तेरे को देते, तो खुश हो गए, सूरत आ गए, सूरत में तैयारी चालू हो गई, किरण हॉस्पिटल की तो तैयारी पूरा सूरत करे, रोज गाड़ी आते, अरे सबका इतनी तैयारी भयंकर चल रही थी कि हमारा, तो हमारे यहाँ तो कुछ तैयारी थी नहीं, तो सब लोग देखते थे कि आपको कुछ लेटर आया है, मेरे लेटर आता है, मेरे को पता नहीं है, मेरे को तो उसने बोला है कि किरण की करूंगा तभी तेरी करूंगा, उसने ही बोला है, मैं किससे लेटर मांगू? पसीना बढ़ता था, तो हमने तैयारी रखी थी, एम्प्लॉय को सबको, भाइयों को, पार्टनर को समझा दिया कि इधर से निकलेगा, शायद समुद्र से आएगा, हम तैयारी में रहे, ऐसा भी नहीं बोला था कि साला पासा पढ़ना पड़े तो 2 दिन बाकी था, और तभी IGIL इसकी टीम आई, सर्वे करने लगी, थोड़ा श्वास शांत हुआ, फिर भी जब तक स्टेज पे नहीं आ रहे तब तक एक इंतजारी रहती थी, क्योंकि राजा है, कुछ भी गड़बड़ आ गई, भोपाल में ये आ गया, नेपाल में ये आ गया, हमारा तो प्रोग्राम रुक जाता है, तो बोला आवे बाद में संतोष हुए और स्टेज पे आया, मैं खूब खुश हुआ, मोटिवेशन हुआ, हैप्पी हुआ, बहुत दिल से। तुरंत दूसरे दिन मैंने लेटर लिख दिया आभार के रूप में, भारत सरकार का आपने 15 मिनट बोला था, 36 मिनट दिया, ये मुझे छोटा है ना, मैंने सऊदी भाई को अपनी बड़े होते देखा, वो बोला ना वो हमारी फैक्ट्री में, तो मैंने आभार का लेटर लिखा और इसमें लिखा था मैं आपको क्या दे सकता हूँ, पर भारत को एक बड़ा सरोवर दूंगा आभार के रूप में, और भारत को, गुजरात को आपको शोभा दे ऐसा, तभी मेरा प्रयास ऐसा था उसका नाम दे, लेकिन वो नाम देने की उसमें परमिशन नहीं, मैंने हरिकृष्ण सरोवर नाम रखा, पहला सरोवर का। और हुआ ऐसा 4 महीना मैंने 1,15,20,000 ट्रक माटी निकाला, 1 ट्रक माटी का 25 टन का, और 200 बीघा में सरोवर बना के रेडी किया, वहां में 2 महीना कभी रहा था, और बढ़िया सा सरोवर हो गया। वहाँ गाँव में प्रॉब्लम होता है, बहुत विरोध करने वाली काफी टीमें होती है, वो लोग सोचते रहे, विचारते रहे, नरेंद्र भाई फैक्ट्री ओपन करने के लिए आए थे, तो ये सब कैपेबल आदमी है, वो मेरे सामने आना ट्राई कर रहे थे, आया इसके पहले 4 महीने में मैंने सरोवर बना लिया, 1 ट्रक माटी निकालने नहीं देते थे वालों को, 1 ट्रक माटी नहीं लेने देते थे, 1,20,000 ट्रक माटी निकाल के बढ़िया सा सरोवर रेडी किया, और मेजर कुदरत अंतरपूर्णा कैसे होती है वही बता रहा हूँ, तो पहली ही बारिश में हमारा सरोवर बन अभी से वही चालू होती है, और हुआ ऐसा 17 तारीख नरेंद्र भाई का प्रोग्राम अमरेली जिले में मेरठ सरोवर के 15 किलोमीटर बाजू में तय हो गया, और फिर तो मेरे को पता चला, मैं भी फोटा जो बच्चे को लेके गया, वो लोग बोले एक को फोटा बताना, एक को वीडियो रेडी रखना, एक को ये रखना, सभी 1 मिनट ट्रेनिंग होनी चाहिए। सर आपने फैक्ट्री का ओपन किया, मैंने आभार के रूप में लेटर दिखा था, ऐसा ही सरोवर रेडी हो गया है, अमरेली में आप आ रहे हैं, और आपका जन्मदिन है, और ये हम राष्ट्र को एक सरोवर अर्पण करना चाहते हैं, आप ओपन कर दें, चलो वर्चुअल कर देते, वर्चुअल 4 महीने में दूसरा हरिकृष्ण सरोवर का उसने अमरेली से वर्चुअल ओपनिंग किया, पूरा अमरेली जिला को पता चल गया, चला ये कैपेबल, मैं कुछ नहीं था, लेकिन लोग समझ लेंगे साला कैपेबल आदमी है, दूसरी बात नरेंद्र भाई को लाया, मेरा जो प्रॉब्लम आता था 99% सॉल्व ये सरोवर, और खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया, मैं उत्साही आदमी हूँ,
अभी हमारा लोग बोलते हैं ना, बहुत खुश होते कि वचन नहीं देना, दुखी हो गए तभी निर्णय नहीं लेना, लेकिन मैंने ये सब कुछ किया है। तो बहुत खुश हो गया नरेंद्र भाई ने, ओपनिंग किया, सरोवर भर गया है, पूरा जिला देख रहे हैं, किसी ने एक ट्रक माटी निकालने नहीं देता था, वहां मैंने इतना पानी भरा है, 100 सरोवर का संकल्प ले लिया। मैंने उसको बताया नहीं, लेकिन मेरे छोटे भाई की बेटे की शादी थी, तभी मैंने उसको कार्ड देने गया था। तो ये लंदन का कार्ड देने गया तो मैंने जैसे ही स्टोरी बताई, सर कार्ड देने आए थे तो स्टोरी बताई कि भाई आपने फैक्ट्री का ओपनिंग किया और आपने सरोवर का भी ओपनिंग किया, हमने 100 का संकल्प ले लिया सर, इसमें से 75 बन चुके हैं। सर अरे हो गए, क्या बात कर रहे हैं सर? यस, क्योंकि 75वां महोत्सव में ले लो, ये 75वां महोत्सव चल रहा था, क्योंकि 75 साल हमारा आज़ादी का पूरा हुआ था ना, तो वो साल चल रहा था। तभी मैं शादी में गया कार्ड देने के लिए। अमृत महोत्सव क्या है मैंने पता नहीं, मैंने बोला सर मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए ये कह रहा हूँ, बहुत कम खर्चे में हमने बहुत बड़ा काम किया। आप स्टडी करा 75 सरोवर हर साल, हम इससे 100 अपना खर्चा करते हैं, लेकिन पानी का रिजल्ट 0 है। हम एक बार खर्चा करो, हमारा ये सरोवर 100 साल तक सूखेगा नहीं। इतना बड़ा कम खर्चे में हमने काम किया है, आप इसका स्टडी कराओ। तुरंत उसने आदमी बुलाया, तो इंस्टेंट मानस है हमारे सामने, ये इंडस्ट्री करो, ये सर्वे करो, इसको जो ये करो, ये करो, ये करो, सब उसने इंटरेस्टिंग दे दिया। हमने बोला ये भी एक बार स्टडी करो। हम भारत का ये शब्द सर यूज किया था, हम बहुत कम खर्चे में भारत का भविष्य बदल सकते हैं। आप खर्चा, एक का भारत सरकार हर साल इतना खर्चा करती है, इधर 0 है, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट देखो, एक बार खर्चा करने से 100 साल तक खर्चा नहीं करना पड़ता। ये सब हमने काम किया है। तो उसने स्टडी कराया, 4 महीना हुआ और सुबह में फोन आया कि आप पद्मश्री के लिए क्वालिफाइड होते हैं, इंटरेस्टेड है? मैं साथ में था, बोला मस्करी कोई कर रहा है, हमने पद्मश्री ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि पद्मश्री मिलेगा, ये मिलेगा, पद्मश्री क्या है ये भी पता नहीं था। बोला कोई मस्करी कर रहा है, होम मिनिस्ट्री में से फोन आता, बोला देखो होम मिनिस्ट्री में तो से होम मिनिस्ट्री में था, वहां भी कोई मस्करी करेगा तपास तो करो। तो कहना होम मिनिस्ट्री में जो ये कमेटी है, इसमें IAS ऑफिसर होता है, उसका ही फोन था। शाम को 7 बजे तक किसी को बोलना मत, आपका नाम अनाउंस हो जाएगा। सुबह 9 बजे फोन आया था, शाम को 7 बजे तक लगा 10 साल चले गए, बोले नहीं किसको। और डिक्लेयर हुआ, ये आदमी ने क्या किया, पद्मश्री दिया, फैक्ट्री का ओपनिंग किया, एक सरोवर का ओपनिंग किया। आप समझो इतना मेरा मकसद नहीं था, इतना मेरा लक्ष्य नहीं था। वहाँ तो बहुत विरोध होता है, बहुत दिक्कत आती है, झगड़ा होता है, कोई भी प्रॉब्लम का तरीका बाकी नहीं रहता है, फिर भी मैं कर सका। ये आदमी ने, प्रधानमंत्री ने इतना सारा मेरे में देखा और मेरे को मोटिवेट किया, इसकी वजह से बना ये अंतःपूर्णा करती है। ये इसने देखा बिना देखे पद्मश्री दिया, वही सिलसिला बाकी रहा था। तो ये इसकी वजह से ये शादी में आया था कि ये आदमी ने कुछ कम नहीं किया है। अभी 160 सरोवर इसके बाद का बन चुका है, और अभी एक नदी आप सबको आमंत्रण में देता हूँ, आप सब आना। 45 किलोमीटर में पानी भरा है, 45 किलोमीटर। और सोच से बोलता हूँ, 150 करोड़ का अभी तक खर्चा किया है। कितना? 150 करोड़। मैंने मेरी लाइफ में 7 साल में फिजिकली 50% समय दिया है, लेकिन मेंटली 90% में वहां पे रहा। 90 रात दिन सुबह शाम सोचने का, बोलने का, करने का, इसका ही विचार किया है। 250 करोड़ का खर्चा करके हमने जो पानी का कीमत कैलकुलेशन करे, तो सूरत में मेरे को जो पानी का बिल आता है, हमारी फैक्ट्री हजीरा में है, वहाँ खारा पानी है, तो SMC से जो पानी खरीद करते हैं 1000 लीटर का 45 रुपया पे करते हैं, वो हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूँ तो 15,000 करोड़ का पानी है। ये धरती को, ये राष्ट्र को दे रहा है। आज
कुदरत के बाद मेरी भाई होली में भाई हेलो ये नहीं मैं यूं करूंगा सिद्धांत है वेद का नियम है आप देंगे उससे 1000 गुना मेरे को मिल रहा है ये नेचर का बहुत सिंपल लॉजिक है लेकिन पढ़े लिखे लोग को ये भेटता नहीं समय देना पैसा देना क्यों दे इसका क्या रिटर्न मिलेगा आई डोंट नो जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं किया जाता ये रिटर्न मिला एम्प्लॉय में समझो कार में समझो या तो पानी में समझो ये पद्मश्री की ये देन है दूसरा कौन सा सवाल था How many of us would like this to go on and on? आज हम समय से पाबंद हैं। साची भाई आपने बताया कि अभी आज के टाइम में क्या हो गया कि अगर बेटा बहू और सास ससुर भी अगर इकट्ठे रह रहे हैं उसको जॉइंट फैमिली कहने लग गए हैं। हम अभी भी 4 जनरेशन इकट्ठे रहते हैं और बहुत खुश हैं 4 जनरेशन एक साथ रहते हैं, लेकिन 64 लोग एक ही घर में रहना और अभी सबके 1-2 बच्चे होते हैं। उन बच्चों को अगर जुकाम भी हो जाए छींक भी हो जाए तो हमें बड़ी तकलीफ होने लगती है। ऐसे में आप अपने घर के हर एक बच्चे को 18 साल की उम्र में आप जब बिना पैसों के उनको बाहर भेज देते और आप शेयर भी कर देते जब अपने वहाँ बैठे थे, तो ये आप किस तरह से करते हैं? मैं पूछूंगी 5 क्योंकि साची भाई ये बहुत ज़रूरी है हमारी जनरेशन के लिए। इस रूम में 20 से लेके आई थिंक द एल्डेस्ट वन इज 81 इन दिस रूम। हम सब दोनों बता देता हूँ 5 मिनट में खत्म कर देता हूँ। ज्वाइंट फैमिली का ऐसा है सिंपल सा हाउ लॉजिक है एकदम सिंपल सा लॉजिक है। मैं सूरत में पहले आया था इसलिए सब डिसीजन मैं लेता हूँ। मेरे से बड़ा भैया है लेकिन बड़ा भैया ने आज भी कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लिया मेरे को बिना पूछे। छोटे भैया ने भी नहीं लिया है और फादर मेरा 84-87 का है तो फादर को नहीं मंजूर है ये भी आज तक मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया है। फादर को एग्री करके ही मैं डिसीजन लेता हूँ। खुश करने के लिए हैप्पी रखने के लिए थोड़ा दिन में रुक जाता हूँ विरोध करते हैं लेकिन 3 दिन में वो अपने लाइन पे आ जाता है बेटा तेरे को जो करना है पेशेंस रखता हूँ थोड़ा। मदर भी ऐसे ही है तो मैं समझा देता हूँ वैसे भी और समझाने की रीत मेरी कॉमन होती है कि भाई ये हम क्या पैसा लेके जाएंगे ये क्या करेंगे। तो फैमिली का एक भी निर्णय ऐसा नहीं लिया है घर में ये मेरा भाई का वाइफ है ये मेरी वाइफ का है ये मेरी मदर का निर्णय है ये भाई का वाइफ का निर्णय है ये मेरे बेटे का है ये भाई का बेटे का है। टुडे है ये टुडे मैंने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है कि ये मेरा बेटा है ये मेरी भाई का बेटा। नो आप लोगों को सबको पता है तो हम लीडर होते हैं उसकी जिम्मेदारी है सब कुछ शांत करने की सबको सही रास्ते पे लाने की। अपमान होवे कि नहीं होवे लीडर घर का बनने का है छोटा है बड़ा है कोई मैटर नहीं है। घर का लीडर को सब जिम्मेदारी सबका विकास होए सबका जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको मान दे या ना दे मान भूल जाओ आपका अपमान करे तो भी सहन करना पड़ेगा। तो जॉइंट फैमिली रह सकती है और 64 में से एक को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इसमें कोई बात नहीं है। आप तक बच्चे का कोर्स बहुत बढ़िया है नो डाउट है बहुत। हम लोग बहुत छोटे थे तो एग्जीबिशन में जाते थे तो लंदन गए थे रात को खाना खाने वेजिटेरियन ढूंढते थे। मैं बात कर रहा हूँ 22 साल पहले 23 साल पहले। तो मेरा स्वभाव रहता है बिल देखते हैं तो 3 बेटे थे और 6-7 हमारा सेल्समैन था और हम 2 भाई थे 12 लोग 15 लोग थे। तो बिल देखा तो 3 पाउंड का उसमें पापड़ था। तो मैंने बोला ये पापड़ खाने के लिए तो बोला पापा बाबूजी बोलते हैं सुन भाई कभी बाबूजी मैंने पापड़ देखा था भाई देखी कभी नौबत भी आई है उसको पैसे का परिचय कराने का ये दिमाग में 6 महीने के बाद आइडिया आया बिना पैसे बिना मोबाइल बिना परिचय उसको भेज दो 4 नौकरी करके आए और पैसे का क्या पॉइंट और बाई प्रोडक्ट इतना सारा मिल गया आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। तब है बच्चे हर रोज रटते थे और हर रोज बाप भी रटते हैं हर रोज माँ भी रटती है क्या करता है क्या नहीं करता है कैसे करता है क्या नहीं करता है
और इतना पैसा है, क्या हमको तकलीफ है, क्यों ऐसा कोर्स कराते हैं, क्या आपको चाहिए, बेटा चाहिए, ये नॉट सिंपल माय फ्रेंड, एक लेवल के बाद। लेकिन ये दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती, ये वहां सीखने मिलता। ये बेटे बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। बच्चे कहते हैं अच्छा किया, पहले रड़ते हैं, थोड़ा नाराज भी होते हैं कि कैसा बाप मिला है, हेवन है हेवन, ऐसा भी बोलते हैं, नो डाउट अबाउट। और जो कोर्स मिला है, जो कॉन्फिडेंस मिला है, जो विल पावर मिला है, कन्विंस करने का पावर मिला है, जो पेशेंस मिला है, हमको क्या चाहिए, बेटा चाहिए। कभी सुसाइड नहीं करेगा, कभी हारेगा नहीं, कभी किसी को मदद करेगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। काफी चीज है, 100 का लिस्ट बनाओ, इसके सामने कोई ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, 1 महीने की ट्रेनिंग। लेकिन तब अलीवर जब भी हमारा रिसेंट ये गया, सबसे छोटा भाई का छोटा बेटा, 8वां बेटा गया, और आज हर रोज मेरे को रात को फोन करता है, और पापा बाबूजी सलाह, हर रोज 500 रुपया तो पहले देता है, वो कंडीशन रखनी पड़ती है मेरे को रोज का पैसा रोज देने का, क्योंकि मेरे को खाना पीना तकलीफ है, मेरे को रहने का तकलीफ, या रहना खाना दो, 500 रुपया रोज मिलता है, लेकिन सलाह बहुत काम कराता है, ये सेठ नहीं काम करता है, ठीक है, मेरा नाम लेके बोला सऊदी का इसका सेठ कोई दुनिया में काम नहीं करता, सब सेठ काम कराते हैं, करते नहीं है। ये काम ये इतना टफ है, फिर भी हंसने का, फिर भी हिम्मत देने का, किसी को बोलने का नहीं, नॉट इजी, बहुत टफ है। लेकिन ये सीखने बहुत है, काफी चीज ऐसे सीखा है, काफी वो आएगा शेयर करेगा। वो द्रव्य भी गया था, कभी भी यही पोजिशन थी, द्रव्य तो अमेरिका से पढ़कर गया था, और वो बहुत उत्साही था, तो 16 साल उसका पढ़ने का चल रहा था, उसको खबर पता था कि ये करने का है तो मैं जल्दी कर लूँ, तो सालू स्कूल के कॉलेज में किया था ना, तो गया, मैंने भी, वो बहुत चैलेंजेबल था, मैं भी चैलेंजेबल था, लेकिन भाई मेरा जो 5 सूत्र है तो कोची भेजा था, कोची भेजा, ना तो हिंदी आती चलती है, ना इंग्लिश ही चलती है, मलयालम में बात, ना कोई रेस्टोरेंट वेजिटेरियन कोची में नहीं है, एक भी आदमी बिना फोन का नहीं मिलेगा, और डोसा खाओ इडली खाओ, बस वही वेजिटेरियन। और गलती ये हो गई, माँ को पता नहीं कि वो साउथ में जा रहा है, कभी गया ना, कभी भी वो डोसा लास्ट रात को बनाया, तो पूरा महीना डोसा खा के आया। किसी को भी दोस्त बनाना, इसका फोन मांगना, और पापा से रोज बात करना, या तो कोई भी फोन से बात, वो भी बात करता था, वो बैठा हुआ है, तो वो भी बात करते करते रड़ते थे, लेकिन टोन ऐसा रखना कि बाप को पता नहीं चले कि बेटा रड़ रहा। ये लाइन मैंने अनुभव किया है, और मैं भी भाई बाजू में सोई हुई है, बेटे को पता नहीं चलना चाहिए, बाजू में भाई को पता नहीं चलना चाहिए, और कॉन्फिडेंस से बात करना, रड़ते रड़ते, हेलो ये काम मिलेगा। ये तो बाप बेटे का संवाद चलता था, बेटा सुनता होता है ना 5-6 साल का, कभी बाप से आता है, मेरे से बात करे, अब सबको एक्सपीरियंस है, 2-3 साल का, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, ये हुआ, बेटे से बात करने की इतनी भूख होती है, यस या नो? 20 साल का होता है ना, बेटा बात नहीं करता है, फिर से ये 2 साल की उम्र रिपीट हुई, 25 साल के बाद बाप बेटा आपको बात करते हैं क्या? इतना निकट भी आए, इतना क्लोज भी आए, इतनी अंडरस्टैंडिंग भी आई, और हिम्मत भी आई, और काफी कुछ मिला है। मैं इसका व्याख्या नहीं कर सकता, इतना काफी कुछ मिलता है। ये ट्रेनिंग तो जरूर लेना चाहिए, लेकिन है टफ माय फ्रेंड, नॉट इजी। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। साथी ये 2 दिन में हमारा पहला सेशन लगभग 400 चेयर है, पूरे लोग ये आपका था, पूरी होना चाहिए। अभी तक हम किसी के सवाल ही नहीं पाए, हमारी लिस्ट में भी बहुत सवाल बाकी हैं। So for the last 2 days your bodies are fed well, yes no? Your minds are well fed, right? Yes. But with this session, a heart and a soul is also well fed, yes or no? Yes. So big round of applause for Sakshi.
एक चीज भी, अगर एक संस्कार भी अगर हम अपने भीतर उतार पाएंगे, आई थिंक नेक्स्ट ईयर व्हेन वी मीट अगेन वील ऑल बी बेटर पीपल। सावजी भाई की फैमिली भी है यहाँ पे, वी हैव सावजी भाई फैमिली ऑल्सो। सावजी भाई प्लीज एक बार स्टेज पे आइए, और इनके परिवार के कई बच्चे भी हैं यहाँ पे, प्लीज आप लोग सब स्टेज पे आइए। एंड cheers to all of them when we play the anthem. So these are all subjectified multiplied this many times. For this, may I request some of our CEOs are there कि वो आए और सरजी भाई को रिकॉग्नाइज करें। गोप कुमार जी, कैलाश सर, सुनील जी, अजीत if you are there, and नवनीत मनोज जी if you are there. Thank you so much. नवनीत, अजीत. Thank you all gentlemen. We will also break for a tea, but I think आप लोग थोड़े से tea first. मैं हमारे task force को invite करूँगा कि आप सब आएं and we will have a photograph with Sarji bhai, only the task force member. We will give everybody a chance. Don't worry about it. हाँ, थोड़ा सा दूर से spread होके. So everyone, and I hope all those who are coming next year, please stand on the right side so that we can have some of us come and. Thank you to the task force. We'll just come down. No selfies, no selfies. Hey, Ruja, I will call. जिसको मैं बुलाऊंगा, please be there. Please, everyone come down. We'll keep it very organized, systematically. When we have all the opportunity, let's utilize it. Next is the young ones first. All the young ones, the second generation.